Ladies and gentlemen, a very good afternoon and welcome to the earnings conference call of EMS Limited Q1 FY25. We have with us today Mr. Ramveer Singh, Chairman of EMS Limited, and Mr. Ashish Tomar, Managing Director from EMS Limited. As a reminder, all participant lines will be in the listen-only mode, and there will be an opportunity for you to ask questions after the presentation concludes. Should you need assistance during the conference call, please signal an operator by pressing star, then 0 on your touch-tone phone. Incorporated in 2010 and headquartered in Ghaziabad, EMS Limited provides a range of services including EPC and O&M in sewerage solutions, water supply systems and wastewater schemes for government authorities and local municipal bodies. EMS Limited offers water and sewerage infrastructure solutions, including laying sewerage networks and building sewerage and water treatment plants across Uttar Pradesh, Maharashtra, Bihar, Uttarakhand, and Rajasthan. And now to discuss more, I would now like to hand over the conference to Mr. Ashish Tomar, Founder and Managing Director from EMS Limited, to give his opening remarks. Thank you, and over to you, sir. Good afternoon. I am Ashish Tomar, and thank you for joining this investor call of EMS Limited. I would like to give you some information regarding the performance of our company in the first quarter of 24-25. The company foresees continued growth on infrastructure development, especially water supply and sewerage, to enhance urban living and connectivity to provide ample growth opportunities in coming quarters. We've seen a good quarter in the first quarter of the 24-25. The company reported a significant increase of 63.12% in consolidated net profit after tax to rupees 37.16 crore for the first quarter, compared to rupees 22.78 crore in the same period last year. Revenue from operations grew by 49.5% to rupees 206.28 crore during the quarter, vis-a-vis rupees 137.97 crore in the same period last year. EBITDA also improved significantly to rupees 52.53 crore during the quarter under review, up by 57.13% from 33.43 crore in the same period last year. Now, going on, these figures were on the consolidated basis. If we are going to look at the standalone basis, EMS reported a 68.21% increase in standalone profit, amounting to rupees 36.84 crores for the first quarter, compared to rupees 21.9 crores in the same period. This growth is attributed to a surge of operating income driven by higher execution of works. Revenue from operations grew by 80.62% to rupees 203.72 crore during the quarter, compared to rupees 112.79 crore in the same period last year. EBITDA also grew by 66.58% to rupees 51.79 crore during the quarter under review, as compared to rupees 31.09 crore in the same period last year. Despite ongoing elections in the last quarter of 23-24, we were able to secure 3 good projects in the last quarter, which has culminated into contracts for EMS. These include one work in Vikas Nagar, amounting in excess of 530 crores, one work in Dehradun amounting to rupees 141 crores, and another work in Uttar Pradesh around 120 odd crores. So I think that is all from my side, and if there are any questions, I'll be happy to take them. Thank you. Thank you very much. We will now begin the question and answer session. Anyone who wishes to ask a question may press star and 1 on their touch-tone telephone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may press star and 2.
Participants are requested to use handsets while asking a question. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the question queue assembles. The first question is from the line of Dhruvesh from Prospero Tree. Please go ahead. Hi, sir. Thank you for the opportunity and great results. Congratulations on that. Thank you. Sir, in the interview, on one of the television interviews, you said that you will be entering the real estate business. I guess you are talking about EPC for real estate, or you are going to become a real estate owner? No, sir. I am talking about joint development in capacity of EPC contractor with real estate players. Okay. Sir, but sorry, where does the contractor becomes a joint developer? I did not understand. Will the sale price of the project affect your fortunes, or you will get the payment for your construction only? No, our rates will be fixed on per square foot basis, which will be entered into a contract by us, keeping the margins constant as in our books right now. ओके सर, लेकिन उनका रियल एस्टेट प्रोजेक्ट बिका कि नहीं बिका ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है, राइट? नो, नॉट ओके, फाइन, थैंक यू. सेकंड सर, उसके अंदर यू आल्सो मेंशन्ड अबाउट मैन्युफैक्चरिंग. सो अगेन हियर आल्सो यू विल बी बिल्डिंग फॉर द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, राइट? दैट इज व्हाट यू मेंट. हेलो सर, उसमें आपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाने की भी कोई बात करी थी, तो क्या आप थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे ये क्या बता रहे थे आप? यस सर, हमने एक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी एक्वायर की है जो हम फतेहपुर यूपी में, जो कि हम उसको हमने अपने बोर्ड मीटिंग में बताया भी है कि वो हमारा प्लान है दिसंबर तक शटडाउन करने का. अल्टीमेटली हम उस प्रॉपर्टी को एज कोलैटरल यूज करेंगे जो हमें बैंकिंग फैसिलिटीज के लिए चाहिए होती है. नहीं सर, लेकिन क्या मैन्युफैक्चर करेंगे यहाँ पे आप? मैन्युफैक्चरिंग तो सर अभी तो वहाँ पे हो रही है पल्प फ्लेक्स पेपर, लेकिन अल्टीमेटली हमें फ्लेक्स पेपर पे फोकस ना करके जो प्रॉपर्टी है वो हमने बैंक से ऑक्शन में लिया है, तो वो हम एज कोलैटरल यूज करेंगे बैंक में रखने के लिए, क्योंकि हमें बीजीज एंड फैसिलिटी के लिए कोलैटरल चाहिए होता है. जैसे अभी हमने सर 2-3 साल पहले यहाँ पे एनपीए यूनिट थी मैस्कॉट करके, वो एक्वायर की थी और उस पे ऑलमोस्ट 60-70% ऑफ मार्केट वैल्यू पे वो हमें बैंक से ऑक्शन में मिल गई थी. एंड राइट नाउ वो आज की डेट में लगभग हमने खरीदी थी वो 22-23 करोड़ रुपए की, और आज बैंक में वो 50 करोड़ की वैल्यू पे एज कोलैटरल सबमिटेड है. सर, तो ये वाले प्रॉपर्टी भी कितने में लिया है जो नया वाला है फ्लेक्स वाला? फ्लेक्स वाला सर एक सेकंड में बुक्स चेक करनी पड़ेगी, मैं अभी आपको बताता हूँ. सर अप्रोक्सीमेट चलेगा, यानी 10 करोड़ है या 50 करोड़ है, अगर कुछ बेसिक सेंस हो तो? 50 करोड़ वैल्यू थी सर, 50 करोड़ से थोड़ा ज्यादा कुछ वैल्यू थी. ओके सर, तो ये मैं समझता हूँ कि आप इसे डिस्काउंट में ले रहे हैं, तो ये आपकी एक पॉजिटिव तरीका है, लेकिन जनरली इन्वेस्टर्स में नॉट लाइक टू सी इट इन दिस वे, क्योंकि हमारा काम एसेट अक्वायर करना तो नहीं है. तो फिर ठीक है, ये आपको 30-40% डिस्काउंट में अभी मिल जाता है, लेकिन बियॉन्ड द पॉइंट प्रॉपर्टी के प्राइसेस तो फिर अटक जाएंगे एक लेवल पे, फिर वो ड्रैग रहता रहेगा हमारे बुक्स पर. नहीं सर, देखिए इन ईपीसी बिजनेस हमारे काम में हमें परफॉर्मेंस गारंटीज बैंक को देनी पड़ती हैं, सॉरी एम्प्लॉयर्स को, और बैंक से परफॉर्मेंस गारंटीज इशू करवाने के लिए हमें कुछ कैश मार्जिन और कुछ कोलैटरल रखना पड़ता है, जो लगभग 20-30% के आसपास रहता है. तो वो प्रॉपर्टी तो सर हमें चाहिए ही चाहिए. मान लीजिए अभी अगर मैं देखूं तो लगभग हमारी अराउंड 500 करोड़ के आसपास की फैसिलिटी है, तो उसके लिए हमें कोलैटरल चाहिए ही चाहिए. और आगे जैसे जैसे अब बिजनेस प्रोग्रेस कर रहा है तो वो
फैसिलिटीज को इम्प्रूव करने के लिए, उन्हें बढ़ाने के लिए हमें कोलैटरल भी आगे चाहिए ही होगा। तो जब लेना ही है तो सर ये हमें जब डिस्काउंट पे मिल रहा है तो इसलिए ये कॉल लिया गया है। Fair enough. Sir, and in terms of overall order pipeline and order book, अगर आप इसके बारे में लास्ट एक क्वार्टर में क्या इंक्रीमेंटल काम हुआ है उसके बारे में अगर कुछ बता सके। That's it. That is my last question. इंक्रीमेंटल लास्ट क्वार्टर में सर हमारा लगभग 203 करोड़ का रेवेन्यू आया एज कम्पेयर टू जो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 23-24 था वो 112 करोड़ था, तो लगभग 80% की ग्रोथ। नहीं सर, आई एम टॉकिंग मोर फ्रॉम एन कि आपने कितने जगह पे नया पार्टिसिपेट किया है, क्या टाइप की आपकी उम्मीदें और दिखी लास्ट 3 महीनों में के काम में। जो बिड्स पाइपलाइन में है सर वो लगभग 4000 करोड़ से ज्यादा की हैं जहाँ पे हमने पार्टिसिपेट कर रखा है, और मैक्सिमम 1 से 2 महीने के अंदर इनका रिजल्ट आ जाना चाहिए। रही बात जो हमें नए ऑर्डर्स मिले हैं तो वो इलेक्शन के चलते, क्योंकि अभी 2-3 महीने पहले इलेक्शन कंक्लूड हुए हैं, उसके चलते जो इवैल्यूएशन प्रोसेस रहती है वो थोड़ा स्लो डाउन थी। जो टेंडर्स हमने Q3 सेकंड क्वार्टर में भी डाल रखे थे पिछले साल के, वो भी जाके अब इसके बाद खुले हैं। तो इस वजह से जो न्यू ऑर्डर इनफ्लो है वो इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी इलेक्शंस होने के बावजूद भी हम 3 से 4 काफी बड़े प्रोजेक्ट्स एक्वायर करने में सक्सेसफुल हुए। एंड वी होप कि जो आने वाला 1-2 मंथ है इसमें जो 4000 करोड़ की बिड पाइपलाइन है, कंसिडरिंग आवर सक्सेस रेशियो ऑफ 10 to 15%, तो ये ऑर्डर्स में जरूर कन्वर्ट होंगे। एंड सर आज की ऑर्डर बुक कितनी है एज ऑफ टुडे? सर इन एक्सेस ऑफ 1800 करोड़ अनएग्जीक्यूटेड वर्क है हमारे पास अभी। ओके, थैंक यू सर। Thank you very much. Ladies and gentlemen, in order to ensure that the management is able to address questions from all the participants in the conference, please limit your questions to 2 per participants. The next question is from the line of Prathamesh from Tiger Asset. Please go ahead. Yeah, so just to follow up, I think yesterday I was listening to one of your interviews. So you told like in coming time we also will be going to for the road EPC. तो मुझे सर ये जानना था कि अभी आपने जो मार्जिन है 24% के, वो आपने कल कहा था कि सस्टेनेबल हो गया इवन इन द रोड, सो जस्ट वांटेड टू नो। नहीं सर, अगर हम प्रोजेक्ट सिलेक्शन ठीक से करें तो जो प्रोजेक्ट्स जिनका मैग्नीट्यूड थोड़ा बड़ा है और हैम मॉडल के प्रोजेक्ट्स हैं तो उनमें मार्जिन अचीवेबल है। ओके, तो आई थिंक सर हैम मॉडल के लिए आई थिंक वील आल्सो रिक्वायर फंड्स, तो कुछ फंड रेज का कुछ प्लान देख रहे हो आप? अभी तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है सर, वो इतने ऑर्डर्स कन्वर्ट हो जाते हैं और क्या स्थिति होगी उस पर भी थोड़ा बेस करेगा, लेकिन एज ऑफ नाउ कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। 1-2 प्रोजेक्ट तो हम जो हमारे पास वर्किंग कैपिटल अवेलेबल है उसी से ओके कर लेंगे। ये रोड का कब से आप देख रहे हैं सर, मतलब बिजनेस में लाने के लिए? ये आप लास्ट 2 क्वार्टर से कह सकते हैं। हमने 2 बिड्स डाली थी, वो अनफॉर्चुनेटली सक्सेसफुल नहीं हुई है, बाकी और बिड्स हम प्लान कर रहे हैं। ओके सर, जस्ट लाइक आई वाज लिटिल बिट क्यूरियस कि लाइक वाटर में इतनी सारी डिमांड है, जल जीवन मिशन, नरीमन गंगा वगैरह, तो लाइक अपन वाटर को छोड़ के लाइक रोड पे भी क्यों देख रहे हैं? लाइक व्हाई आर वी नॉट फोकसिंग ऑन टू वाटर ओनली? जैसे कि अपन की ग्रोथ भी अच्छी आई है लास्ट कपल ऑफ इयर्स। सर देखिए, सेक्टर छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, प्राइमरी फोकस तो हमारा वाटर ही रहेगा। ऑलमोस्ट अभी भी 2/3 से ज्यादा काम हम वाटर सेक्टर में ही करते हैं अपने ओवरऑल काम से, और आगे भी गोइंग फॉरवर्ड ये मिक्स लगभग इसी के आसपास रहेगा। लेकिन फॉर ग्रोथ दूसरे प्रोस्पेक्ट्स भी हम देख रहे हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द मार्जिन। अगर इसी मार्जिन पे सर काम मिल जाता है तो बहुत बढ़िया, क्योंकि हम तो जो बिड्स डालेंगे
वो यही अपना मार्जिन समझते हुए डालेंगे। ओके ओके। और सर ये 1800 करोड़ की ऑर्डर बुक कब तक एग्जीक्यूटेबल है? 2 से 2.5 साल के अंदर सर ये एग्जीक्यूट होनी है। ओके। और सर EBITDA अपना 24% से रहेगा, 24 से 26? हाँ सर, ये तो सब यही मार्जिन के साथ डाले हुए प्रोजेक्ट्स हैं। जी जी ठीक है। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you very much. The next question is from the line of Viraj Mahadvedia from MoneyGrow. Please go ahead. Hi sir, thanks for the question, taking the question and for the excellent results. Can you highlight what is the uniqueness or proposition of EMS versus other EPC players to achieve much higher margins of 25-26% versus many other players in the industry at anywhere from 13 to 16%? Yeah, so primarily we think we would like to see ourselves as not as an EPC company but an engineering company. A very major portion of the work that we do requires engineering of the work that has been awarded to us, and the margins as well as execution is based on how well that engineering has been carried out. So I think that may be a contributing factor to the difference in the margins that you see. Also, I think we've got an excellent team of engineers and support staff which have helped us to execute the projects in a timely manner without seeing cost overruns or delays. Right. So do you actually take on... Yeah. Right. Please go ahead. Yeah, and apart from that, we operate on an asset-light model. We do not have any debt on our balance sheet. So all these factors cumulatively contribute to the margins, as you can see. Samajh gaya ji. So tell me, if a municipality were to give you a contract, either to build a new sewage system or to upgrade or renew an existing very old sewage system, would you simply design it and outsource the actual work to other people? So is your uniqueness really your understanding of everything that's below the ground around the sewers, and hence you can design this including the necessary equipments and latest technologies, etc.? And is it that you just contract out the remainder of the work and hence you maintain the high margins? Is that understanding correct? We execute the work ourselves. The design team is and execution teams, both are different in our company, and the execution teams carries out the project based on the design that is given by the design team. So we do not subcontract the work to other contractors. We execute the work ourselves. Understood. And who is your competition in this space? Are there a lot of players, niche players in the sewerage sector, and are any of the bigger EPC or design companies getting into this space? Yeah, if you were to consider players similar to our size, then I think there's a few companies based out of Gujarat, LC Infra, DR Agarwal, Infracon. Then there are some companies in Mumbai. Khiladi Infrastructure is one of them. And then some companies based out of Andhra, Mega Engineering. NCC and L&T, Shapurji, Palonji also used to participate in these kind of works, but lately we haven't been seeing them participate enough in this sector. Understood. And given the runway on orders, are you likely to see a swelling order book in the next 6 to 9 months, given the comments in the budget regarding water sector and sewerage? Yeah, surely, sir, surely. I think there's going to be a significant increase in the water sector works that are going to come out of the government entities, and those will definitely translate into much more orders for us, I do. Understood. How many orders have you bid for currently? Total value?
currently, sir, we have bid for orders worth of 4,000 crores excess. Hello? Hello. How many orders? I didn't catch that. Sorry. Yeah, the total value of orders that we have bid for is in excess of 4,000 crores. Okay. Thank you very much. All the best. Thank you. Thank you very much. The next question is from the line of Tej Patel from Niveshaay. Please go ahead. Hello, sir. Thank you so much for the opportunity. Sir, can you tell me the number? अपने इधर permanent employees, how many employees are permanent on a permanent payroll at EMS? Yeah. Around sir, क्योंकि साइट बेस्ड काम है, तो कुछ स्टाफ ऐसा होता है जो एक साइट से दूसरी साइट पर माइग्रेट नहीं करता. फिर भी परमानेंट एम्प्लॉइज आप 250 से 300 के बीच में कंसिडर कर सकते हैं. कभी 260 होता है, कभी 270, कभी 280, मतलब इसके आसपास ही रहता है. अच्छा, ओके. तो सर मेरा सवाल ये इसलिए था बिकॉज सर अगर मैं सर अपने एम्प्लॉय कॉस्ट की बात करूँ, राइट, लेट्स से प्रीवियस ईयर वो 12 करोड़ के करीब था, बट देन सर मैं 80% 14 करोड़ के करीब था, बट 80% सर सैलरी जा रही है सर KPIs को, और बाकी का सर 20% अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़ जा रहा है सर ऑलमोस्ट लेट्स से आपके परमानेंट एम्प्लॉयज को. मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो आप कॉन्ट्रैक्टिंग बेसिस पे लेते हो, वो आपका कॉग्स में जाएगा, राइट. तो सर मैं जानने की ट्राई कर रहा हूँ कि आपके 200 एम्प्लॉय आर ऑन फुल टाइम, आपके 80% जो एम्प्लॉय कॉस्ट है वो KPIs को जाता है, बाकी का सर 2 करोड़ जो बचा वो जाता है आपके 200 जितने एम्प्लॉयज को. तो सर उस हिसाब से अगर मैं गिनूं सर, बेसिक मैथ करूं सर, एम्प्लॉय की सैलरी सर 8,000 जितनी आएगी पर मंथ. तो सर वो मेरे को थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है कि आज इंजीनियरिंग कंपनी के कोई इंजीनियर्स को हाउ कुड द सैलरी बी लेस देन 8,000 अ मंथ, राइट. तो सर इसका कोई रीजन या कुछ इस पे एलोबरेट कर सके, क्या है? हेलो. One second, sir. I think I'd like to check. Give me 1 minute. I don't think कि ऐसा होगा. मैं एक मिनट चेक कर लेता हूँ. हाँ जी. सर आई थिंक इसमें मैं फर्दर क्लैरिफिकेशन इशू कर दूंगा, पर मुझे जहाँ तक लगता है ये सर इतनी कम नहीं होगी. आई थिंक कि सर मैं जो नंबर्स बोल रहा हूँ ना सर, मैं आपको ये आपने जो DRHM में से डेटा बोल रहा हूँ सर, 14 करोड़ की आपका लेट से एम्प्लॉय कॉस्ट था, और उसमें से सर 12 करोड़ आपका KPIs को जा रहा था, मतलब आपके डायरेक्टर्स प्लस आपको और रामवीर सिंह जी को जा रहा था, और बाकी सर ऊपर बचा 2 करोड़. 2 करोड़ में सर आप बोल दो कि आपके जो परमानेंट पेरोल पे एम्प्लॉय थे वो 200 है सर. तो सर बेसिक मैथ लगाए तो सर उतना ही आएगा. और मैं सर लेट्स से आपने जो DRHP में एम्प्लॉयज का, हेलो, हाँ जी, आप जो है हमारी हर महीने की जो हम सैलरी शीट है वो कम से कम 70-75 लाख रुपए है जो एम्प्लॉयज को जाती है. 270-72 एम्प्लॉयज को हर महीने की. ऐसा हो ही नहीं सकता जो आपके हर एक 2 करोड़ होगी. कम से कम 9-10 करोड़ रुपए है वो. आपको कुछ गलत हुआ है. ठीक है सर. कोई पिछले महीने की सैलरी शीट देखेंगे तो 75-80 लाख है हर महीने के. ये तो हर महीने जाती है यही से हेडक्वार्टर से ही. तो हम ही तो करते हैं, तो हमें अच्छे से पता है कि 10 करोड़ से कम हो नहीं सकती. अच्छा सर, आप कितनी बोल रहे हो हर महीने की? कम से कम 75 से 80 लाख रुपए जाती है. ठीक है सर, कोई नहीं. ठीक है सर, आई विल मे बी शायद मेरे एंड पे कुछ गलती, मैं एक बार क्रॉस चेक कर लूंगा. बट ये हाँ जी, ओके सर. और सर अभी जो हमारी ऑर्डर बुक है उसमें से सर वाटर और नॉन वाटर सेगमेंट का अगर आप स्प्लिट बता सकते हो क्या? अभी 75% वाटर सेक्टर से है, वाटर वेस्ट वाटर से 25% अदर से.
अच्छा, और सर जैसे आपने अभी ट्रांसमिशन में भी ऑर्डर जीता था और आप जैसे इंटरव्यू में बोले कि भाई आप रियल एस्टेट मतलब बिल्डिंग सिविल साइड भी जा रहे हो, तो सर उससे अपने मेंटेन कर पाएंगे आगे जाके ये मार्जिन सिमिलर जो भी अपने कर रहे हैं 25%? जो भी हमारा सबसे पहला फोकस ये है कि जो हमारा मार्जिन है वो मेंटेन हो। हाँ जी सर। काम हम सब कर लेते हैं, लेकिन अभी तक हम ज्यादातर काम करते हैं अपने वेस्ट वाटर के ही, और कोई प्रोजेक्ट हमें अदर्स उसमें भी मिलता है जो हमारे मार्जिन को नुकसान ना पहुंचाए, तो उसको भी हम कर लेते हैं। और सर हम जो टेंडर्स बिड करते हैं उसमें सर अप्रोक्सीमेटली नंबर ऑफ बिडर्स कितने हो गए? वो तो देखो जी अलग अलग उसकी अलग अलग रीजन के अलग अलग वो होते हैं नंबर्स, कहीं 4 होते हैं, कहीं 5, कहीं 7, कहीं 3 भी होते हैं, कहीं 8-10 भी हो जाते हैं। अच्छा, तो सर अप्रोक्सीमेटली लेट्स से मैं 4-5 मान लो, राइट? हाँ 5-6। तो सर मैं वही समझने की ट्राई कर रहा हूँ कि सर वो 30% आप जो भी 25 से 30% मार्जिन मतलब कैसे बना रहे हो? क्योंकि सर ग्रॉस लेवल में मैं देख रहा हूँ कि आपके मार्जिन जैसे सिमिलर है बाकी ईपीसी प्लेयर से। बाकी सर जो भी ये क्षेत्र में काम कर रहा है, लेट्स से ठीक है आपके थोड़ा पीवेज साइड काम कर रहे हो सर, जनरली सब 15 से 17% मार्जिन बना रहे हैं, और उनमें भी सर लेट्स से अपने 5 जन है जो एवरेज टेंडर बिडर्स है। तो सर मेरे को थोड़ा वो ये समझो कि हमारी कोई फाइनेंशियल कॉस्ट नहीं है प्रोजेक्ट पर, हमारी कोई हेडक्वार्टर की ऐसी कॉस्ट नहीं है जो लोगों के यहाँ होती है। हमारे जो ओवरहेड्स है वो बहुत कम है। हाँ सर, इसमें ओवरहेड वाला इसलिए सर मैंने एम्प्लॉय का आपको पूछा क्योंकि सर आपकी जो 80% सैलरी जाती है वो सर KPIs को जाती है। ना वो तो मैंने आपको वो कर दिया। हमारी जो ये भी अगर उसको भी जो आप कह रहे हैं ना उसको भी जोड़ के हमारी 2% के आसपास बैठती है कुछ कॉस्ट, 2-2.5% के बीच में बैठती है, और जो बड़े बड़े जिनके आप नाम लेते हैं उनके 8-10% बैठती है, और 5-7% उनका फाइनेंशियल कॉस्ट बैठती है। तो 10-15% के मार्जिन में तो उनके हमारे में वैसे अंतर है। फिर हम जो प्रोक्योरमेंट करते हैं वो एडवांस पेमेंट पर करते हैं। मटेरियल प्रोक्योरमेंट में 5-7% का फर्क होता है। लेबर का हमारे यहाँ ये है कि भाई हर महीने पेमेंट होगा, चाहे हमें कहीं से पेमेंट आए प्रोजेक्ट से या ना आए, उसमें भी कम से कम 10-15-20% तक के हमारी कॉस्ट कटिंग होती है। वो सब यही मार्जिन है, मार्जिन सबको तो नहीं है। ठीक है। और सर अभी Sorry to interrupt, sir. May we request that you return to the question queue for follow-up questions, as there are several participants waiting for their turn. Okay, no problem. Thank you very much. Okay. The next question is from the line of Dinesh from Finsights. Please go ahead. Mr. Dinesh, you're unmuted. Please go ahead with your question. हेलो, कैन यू हियर मी नाउ? Yes, sir. ये आवाज आ रही है? हाँ, ओके सर, मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी कांग्रेचुलेशंस ऑन अ गुड सेट ऑफ नंबर्स। मेरा एक क्वेश्चन था सर, मैं आपका जो फाइनेंशियल देख रहा था, तो हमने 75% ऑफ कंपनी एक्वायर किया है, दैट्स ब्रिज बिहारी पल्प एंड पेपर प्राइवेट लिमिटेड। क्या इसका आप जरा डिटेल्स बता सकते हैं कि ये क्या है? मतलब इज इट जस्ट हेलो, हाँ, ये हमने जो एक्वायर किया है ना सर, ब्रिज बिहारी पेपर पल्प। हेलो सर, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ये कंपनी हमने एक फैक्ट्री है। हेलो, एक मिनट। ऐसा है, ये जो हमने ब्रिज बिहारी पल्प एंड पेपर की फैक्ट्री एक्वायर की ना जी। हेलो हेलो, हाँ सर, सुन रहा हूँ मैं। हाँ बताइए, आई आपकी आवाज। हाँ बोलिए। हमें जो है, जो हम प्रोजेक्ट करते हैं उनमें PPG देनी पड़ती है 10% 15% तक की। जैसे मान लिया हमारे पास में जो 3-4 हजार करोड़ के ऑर्डर होते हैं, तो उनमें 500-600 करोड़ की बैंक गारंटी जाती है। तो बैंक जो है बैंक गारंटी देने के लिए मार्जिन लेता है। वो मार्जिन 2 स्टेज में होता है। एक कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में कोलेटरल सिक्योरिटी होती है, या तो आप FDR जमा कर दो वहाँ, या आप कोई प्रॉपर्टी दे दो पैसे की। ये हमने एज प्रॉपर्टी खरीदी है। हाँ,
या तो हम उस पैसे को FDR जमा करते बैंक में, वो पैसा पता लगा 5% 4%